Thank you for this precious time you have given to each and every one of us to come together, to praise you, thank you, acknowledge you, seek your face, seek your directions. Let every one of us who are here be covered by the precious blood of the Lamb that was shed on the cross. You paid a price for our lives, and we belong to you. We are not our own, but our body, mind, and spirit, our life belongs to you, Father. Help us to remember that every moment. No weapon shall be fashioned against any one of us, it shall not prosper. And you said, you are the temple of the living God. I will be your God, and you shall be my people. Help us to confess that on a moment-to-moment basis, that we are not our own, we belong to the King of Kings and the Lord of Lords. The word that is going to be spoken, Father, it's not me who is going to speak. You will speak to your people. You will cover them. You will direct them. You will strengthen them, and you will correct them, comfort them. Whatever is according to their need, you will minister. All glory, honor, and praise belongs to you. In Jesus' mighty and matchless name we pray. Amen. Kekamo. Can you hear? Yes, Auntie Kekam. Kekam, okay. In the beginning, let me just say a word of encouragement and then come to the word that the Lord has given. शुरुआत के समय में कुछ दृढ़ता देने वाली कुछ बातों को कहकर फिर मैं परमेश्वर के वचन की ओर आना चाहूंगा. Psalm 19:9. Can somebody भजन read संहिता Psalm 99. भजन संहिता 99. यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे. वह केरूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे. यहोवा सियोन. Psalm 19:9. Sorry. 19 verse 9. Yes. भजन संहिता 19 का 9. यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है. यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है. What we need to have is fear of God, not fear of whatever we are experiencing now. हमें परमेश्वर का भय मानना है, हमारे परिस्थितियों से हमें डरना नहीं है. The fear of God means not fear that you have to keep away from him. It's an awesome reverence and respect that we have for the Lord. और परमेश्वर का भय मानना ये मतलब नहीं है कि हम उससे दूर रहें, मगर हम उसे आदर करके हम उसके करीब रहना है. And then in Isaiah 35:4 it says, be strong, do not fear. और एशिया 35 का 4 में कहता है कि डरो मत, दृढ़ता से रहो. And then we are expected to encourage those who are fearful, even though we are believers, Christians, but there is so much of fear in the heart of even a believer. हम विश्वासी जन होने के बावजूद हमारे अंदर अधिक घबराहट होता है और डरने की अवस्थाओं में से हम गुजरते हैं. The fear is because people have lost jobs, the finances are going down. People, even those who are preaching the word of God, who are going to church regularly, are falling sick.
Many have died and many are on ventilators. When we hear all this, we are afraid. और डर इसलिए लगता है क्योंकि अनेक जनों का नौकरी चला गया है, अनेक जनों को तकलीफ है, अनेक जनों को बीमारी और इस प्रकार की बातें सहन करना पड़ रहा है। जब हम इस प्रकार की खबर सुनते हैं तो हमें डर लगता है। All this is not expected to touch us because we belong to the King of Kings and the Lord of Lords. और हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हमारा परमेश्वर होने के कारण ये सब बातें हमें कोई हमें छू नहीं सकता है। We should not allow these things to come anywhere near us. We need to encourage ourselves and encourage the people around us with the word of God and the truth of the word. और इन सारे बातें हमें कमजोर नहीं करना चाहिए, हमें ये किसी तरफ से हमें ढीला करना नहीं चाहिए, औरों को भी हमें सामर्थ्य और इस प्रकार की दृढ़ता हमें दूसरों को देना चाहिए। I work in a hospital and we had many COVID patients and we were seeing them on a daily basis coming in, getting ventilated. People were afraid, yes, but when we trust in the living God, these things, yeah, go ahead. मैं एक कोविड हॉस्पिटल में नौकरी करता हूं और हर दिन कोविड के मरीजों से मिलता हूं और उनको हम चिकित्सा करते हैं और इन प्रकार की बातों को जब हम देखते हैं, we are not allowed to think on those things. Our focus and our eyes needs to be upon the Lord who rules and reigns over all the earth. इन सारे बातों को जब हम देखते हैं तो हम उसके अंदर गुम नहीं हो जाना चाहिए, मगर परमेश्वर की और हमारा भरोसा लगाकर उस तरफ हमें आगे बढ़ना है। Can we read Isaiah 35:3 and 4? यशायाह 35 का 3 और 4। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। Can we encourage one another by saying the word of God, and the word of God has the power to heal and restore the people who listens to the word. और क्या हम आपसी औरों से इस प्रकार प्रोत्साहित करके कहेंगे कि परमेश्वर को चंगाई करने का सामर्थ है और परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ दे सकता है। When I was praying for today's meeting and asking, Lord, what shall I speak? I don't know anybody except Pastor Suresh and family. What you want to speak to them, Lord, speak. And he gave a small idea about who I will be speaking to. और जब आज शाम को मैं जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर, मैं क्या प्रचार करूं, क्या संदेश पहुंचाऊं, क्योंकि मैं इस कलीसिया में पास्टर सुरेश के अलावा और किसी को जानता नहीं हूं और केवल किससे मैं बात करने जा रहा हूं करके एक छोटा सा एक आइडिया मुझे उन्होंने दिया था। What he said was, they are diligent in seeking the word. और उन्होंने केवल इतना ही कहा कि वे परमेश्वर के वचन सुनने के लिए बहुत खुले मन के साथ, इच्छा के साथ रहते हैं। But they need to do one thing. मगर उन्हें एक बात करना है। There needs to be a self-assessment, a self-evaluation. और उन्हें खुद को परखने की एक अवस्था, खुद को जांचने की एक अवस्था आना चाहिए। Why do you need to do self-assessment? और हमें इस प्रकार क्यों खुद को जांचने की जरूरत है? We need to know, every one of us need to know where we stand or how God sees us. और हम सबको ये जानना जरूरी है कि हम कहाँ खड़े हैं और परमेश्वर हमें किस प्रकार देख रहा है। In these last days, He is preparing His bride. और इन आखिरी दिनों में परमेश्वर अपने उस
दुल्हन को तैयार कर रहा है, and he wants the bride to be blemish free, without any sin. और परमेश्वर ये चाहता है कि उसके दुल्हन जो है एकदम पवित्र रहे. And how can we make ourselves the bride? और हम उस प्रकार की एक दुल्हन किस प्रकार बन सकेंगे? Can we read 2 Timothy chapter 2? दूसरा तिमोथी दूसरी अध्याय 20 verse 20. उसकी 20वीं वचन. दूसरा तिमोथी दूसरी अध्याय उसकी 20वीं वचन. बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर कांट और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए. Where do we belong? Are we for vessels of honor or vessels of dishonor? हम कहाँ रहते हैं? हम क्या जो बर्तन ऐसे हैं जो अनादर के हैं या आदर के बर्तन हैं? And God in his word says, even if you are for dishonor, you make your corrections, cleanse yourself, and you will be considered vessels of honor. और परमेश्वर कहता है कि अगर आप अनादर के हैं तो आप अपने आप को पवित्र करो, परमेश्वर के वचन मानो, तो आपको आदर के योग्य बनाया जाएगा. And how can we become vessels of honor? और हम आदर के पात्र किस प्रकार बन सकेंगे? There are few things that we need to stand and do before we become vessels of honor. और हमें कुछ बात आदर बनने के लिए कुछ बात हमें करना है. 1 Corinthians 6 verse 14 and 2:16. पहला कोरिन्थी 6वीं अध्याय उसकी 14 से लेके 16वीं वचन. और परमेश्वर ने अपने सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह का अंग है? सो क्या है मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या का अंग बनाओ? कदापि नहीं. क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वे उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे. Did you read the 1 Corinthians 6:14? या 1 Corinthians 14 is, और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा. No, wait. You're reading 6:14. 6:14. Now God has not only raised their Lord, but will also raise us through His power. No. 2 Corinthians 6:14. Sorry, yeah. Do not be unequally yoked together with unbelievers. That's the verse. दूसरा कुरिन्थी 6वीं अध्याय उसकी 14वीं वचन. अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, क्या या ज्योति और अंधकार की क्या संगति. And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, as God had said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God and they shall be my people. और मूर्तों Yeah. Cannot hear. I cannot hear. I cannot hear. 1 minute. Yeah. Now yes. और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है. जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे. What he wants us to do and what he is instructing. He says,
Don't become unequally yoked with unbelievers. और वो We can हमसे say- क्या Yeah. वो हमसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूते। We are living in a fallen world. Yes. और हम एक गिरे हुए संसार में रहते हैं, But that does not give us the freedom to accept what other people do and make our habits same as them. और इसीलिए वो हमें अनुमति नहीं देता है कि हम इस संसार में अन्य लोगों के समान जिए और वे जैसे करते हैं वैसे हम भी करें। He's saying, I will dwell in them. He यहाँ is परमेश्वर dwelling in कहता है us. कि मैं उनमें जीऊंगा And I will walk among them. I will walk among them. और मैं उनके बीच में चलूंगा। I will be their God and they shall be my people. और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा और वे मेरे लोग होंगे। Why is he saying, if he is decided that he is going to live with us, why he is restricting us in becoming like the rest of the world? और अगर हम इस संसार में रहते हैं तो हम अन्य लोगों के समान नहीं होने के लिए वो क्यों हमें रोक रहा है? 1 Peter chapter 1, 15 to 16. 1 Peter chapter 1, 15 to 16. पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 15 एंड 1, 15 and 16. 15 to 16. पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 15 और 16। पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। Because he needs to live in us, because he is going to walk among us, because he is going to be our God, he needs us to be holy like him. और क्योंकि वो हमारे साथ चलना चाहता है, वो हमारे बीच में बसना चाहता है और वो हमारा परमेश्वर है, इसीलिए वो चाहता है कि हम पवित्र बने जैसे वो पवित्र है। And then he says one more thing in the 1 Corinthians 6, 17 and 18, he says, पहला कोरिन्थी 6वें अध्याय उसके 17वें और 18वें वचन में इस प्रकार कहता है, come out from among them, be separate, और उनके बीच में से निकलकर अलग रहो, do not touch what is unclean, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, and I will receive you. और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, I will be a father to you. और मैं तुम्हारे लिए पिता होऊंगा। You shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। And then he says, और उसके बाद वो कहता है, even in Isaiah 52:11, second part, he says, go out from among the midst of her, be clean, you who bear the vessels of the Lord. 52 के 11 में इस प्रकार वो कहता है कि दूर हो और निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो। So God requires every believer who serves him to be holy and pure and clean unto the Lord. और परमेश्वर चाहता है कि उसके सेवा में रहने वाले उसके प्रजा वो पवित्र रहे और परमेश्वर के लिए शुद्ध जिंदगी बिताए। In 2 Timothy 2:19 and 20, he says, I know who belong to me. और दूसरी तिमोथी दूसरा अध्याय 19 और 20 में वो कहता है कि मैं जानता हूं कि कौन मेरे और है। The Lord knows those who are his, and let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. और प्रभु अपने को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है
वह अधर्म से बचा रहे। See how important it is for him how we live on the face of the earth. Even though there is so much of temptation, there is so much of trouble, there's so much of difficulties, he still expects us to love him wholeheartedly and follow him. और देखिए कितना परमेश्वर हमसे उम्मीद रखता है कि संसार में अनेक प्रकार की बहलाने वाली बात, लोभ करने वाली बात सब होने के बावजूद परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम पवित्र रहे और सारे अधर्म से बचा रहे। Why it is so important? Because we are serving a living God. यह एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। And when we serve a holy and almighty God, we need to have certain disciplines in our life. और जब हम पवित्र और सामर्थी परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमारे जिंदगी में कुछ अनुशासन होना जरूरी है। And when we have such a close walk with the Lord, no corona, no sickness, no temptation, no evil can come against us because we are in him and he in us. और जब हम उस परमेश्वर के साथ इतने नजदीक के रिश्ता रखकर हम चलते हैं तो कोई कोरोना या कोई बात हमें गिरा नहीं सकता है। इस प्रलोभन या इस संसार की पाप, इस संसार की कोई भी बातें हमें गिरा नहीं सकता है। हेलो, When we have that shift, there is a gap between us and the Lord. हमारे और परमेश्वर के बीच में एक संबंध, टूट संबंध परमेश्वर चाहता है। When we do not have that relationship, अंकल आंटी ने म्यूट है। okay. इन्हें म्यूट है। When we do not have that close relationship, there is a gap between us and God. और जब हम परमेश्वर के साथ एक करीबी रिश्ता नहीं रखते हैं तो हमारे और उनके बीच में एक जगह पैदा हो जाता है या एक दरार हो जाती है। That is where the evil one will come and touch us. और उस जगह के बीच में देखिए दुष्ट आकर हमें छूता है। So we, in this present situation, we do not allow anything to separate us from the love of God, from the presence of God. और इसीलिए हम इस दैनिक जिंदगी में परमेश्वर के उस प्रेम से कोई भी बात हमें अंतर ले जाने के लिए या दूर ले जाने के लिए हम अनुमति नहीं देना चाहिए। And when he says, I know who is mine, God says, I know who is mine. और परमेश्वर कहते हैं कि मेरा जो है उन्हें मैं जानता हूं। In John 10:14, यूहन्ना 10:14 में he says, I am the good shepherd, वह कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं and I know my own, और जिस तरफ पिता मुझे जानता है वैसे ही मैं मेरे भेड़ों को जानता हूं। I know my own and my own knows me. और मैं मेरे भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। So we need to be in that position. God knows us and we need to know him. Know him means a personal walk with the Lord. और हम जब परमेश्वर में रहते हैं तो जिस प्रकार परमेश्वर हमें जानता है उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर को जानना है। जानना अर्थात एक करीबी रिश्ता, उसके साथ चलने की एक संबंध में हमें आना है।
And in 10:27, John 10:27, he says, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." यूहन्ना 10:27 में हम पढ़ते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। So from these two verses, how are we known to God? और इन दोनों वचनों से हम किस प्रकार परमेश्वर हमें किस प्रकार जानता है? Because we are his sheep, और क्योंकि हम उनके भेड़े हैं, because we hear his voice, और क्योंकि हम उसकी आवाज को सुनते हैं, because we follow him, और क्योंकि हम उनके पीछे होते हैं, and because we are obedient to him. What is the meaning of follow? Is obedience to him. और क्योंकि हम उनके बातों को मानते हैं, हम उनके पीछा होते हैं, उसका मतलब यह है हम उनकी बातों को मानते हैं। And how can we maintain God's presence in our life? और हम उस परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जिंदगी में किस प्रकार महसूस कर सकते हैं? Can we read Psalm 15? और भजन संहिता 15 हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? Read the whole Psalm. वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का अंदर आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठाना पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। See, so important it is. Every one of our activities, every moment of our life, God is watching us. He says, walk uprightly and work righteousness. और देखिए, परमेश्वर हमारे हर चाल चलन पर ध्यान रखता है। वो कहता है कि खराई के साथ चलो और धर्म के काम करता रहो। Speak the truth. और सच को बोलो। Do not backbite, like speaking behind somebody's back about them. और अपनी जीभ से निंदा नहीं करना और किसी की बुराई नहीं करना और अपने पड़ोसी का निंदा सुनना नहीं। No false witness against your brother. और अपने भाई के लिए एक निकम्मा मनुष्य के समान या उसके लिए एक गलत गवाही नहीं ठहरना। Despise sin means reject or say no to evil or no to sin. गलत कामों को ना कहना। Honor those who fear the Lord. और परमेश्वर के आदर करने वालों का आदर भी करना है। Do not lend money for interest. और अपना रुपया ब्याज पर नहीं देना है। Or take bribe. और घूस नहीं लेना है। See, these are common activities in anybody's life in any part of the world. और ये सब संसार में कहीं भी रहने वाले मनुष्य के जिंदगी में करने वाली बातें यहाँ लिखा है। When somebody says, if you commit a sin, the result is death, and people will say, I do not commit any sin. I am following the Lord. I am obeying the commandments of the Lord. जब कोई कहता है अगर आप पाप करेंगे तो उसका मूल्य उसका वेतन मृत्यु है, आप मगर हम कहेंगे कि हम तो पाप नहीं कर सकते हैं, हम परमेश्वर की बात को मानकर चलते हैं। In Psalm 139 it says, your thoughts from afar is known to the Lord. और भजन संहिता 129 में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। There is nothing hidden in his sight, even when we go anywhere out of the presence of the rest of the people, he still sees us wherever we are. हम कहीं पर भी क्यों ना जाए
और छिपता है, मगर फिर भी वहां परमेश्वर हमें देखता है। The whole world is in a turmoil. The संसार whole में एक world, बड़ी समस्या, nobody knows what to do. है और कोई जानता नहीं है कि क्या करना है। Only one thing we need to know. हमें इसके बीच में एक बात को जानना जरूरी है। I want to be with my Lord 24/7 all the days of my life. 24 घंटा 7 दिन मेरे परमेश्वर के साथ मैं जीना चाहता हूं करके एक निर्णय हमारे अंदर होना चाहिए। When we go to work, we take the Lord with us. हम जब नौकरी पे जाते हैं तो हम हमारे परमेश्वर को हमारे संग ले चलते हैं। When we are in the house, we live with the Lord in our house. जब हम हमारे घर में रहते हैं तो हमारे परमेश्वर के साथ हमारे घर में हम रहते हैं। When we make a decision, we seek his face and his counsel before we make a decision. हम जब कोई निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेने से पहले हम उसके मुंह को ताकते हैं और उस निर्णय को हम समझने की कोशिश करते हैं। And we need to have a grateful and thankful heart for what the Lord has done for us. और परमेश्वर ने हमारे लिए किया हुआ उस भलाई के प्रति हमें उसके प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद की एक हृदय होना चाहिए। And we do not think that I can do all things. No, without Christ, we can do nothing. और हम इस सोच के साथ ना रहे कि हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, मसीह के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। Jesus told his disciples also, without me, you can do nothing. यीशु ने अपने चेलों से भी कहा कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। So what we need to do, depend upon the Lord for every moment of your life. और इसीलिए हमें क्या करना है, हमारे जिंदगी के हर श्रेणी में हर बातों पर हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। And in the name of Jesus, there is power and there is authority. यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है और अधिकार है। And in that authority, we live in this fallen world. उस अधिकार के साथ हम इस संसार में जिंदगी जीते हैं। God in these last days, he is preparing a remnant, which is the bride. Remnant. इस आखिरी अंतिम दिनों में परमेश्वर अपना एक उस दुल्हन को तैयार कर रहा है। And let us be obedient to the high call that the Lord has given to us. परमेश्वर ने हमें बुलाया हुआ उस ऊंचे बुलावट के योग्य जिंदगी हम बिताए। And we need to follow the word and not the doctrines that we hear from other people. हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी रहे और औरों से सुनने वाले सिद्धांतों से बढ़कर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम आगे बढ़े। This is the life manual for us to live on the face of the earth. और ये बात हमारे लिए रखा गया है ताकि हम उसके अनुसार परमेश्वर के लिए इस संसार में जिंदगी बिताएं। So we need to make that decision and say, Father, come into our life. Take authority, total control and authority over our thoughts, our words, our plans, our purposes, and every member in our house belongs to you. I leave everything in your hands. और हम उस प्रकार जीने के लिए हम निर्णय लेकर हम प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, तू मेरे जिंदगी के अंदर आ, मेरे सोच, मेरे चाल चलन, मेरे विचार, मेरे परिवार के हर बातों पर तू प्रबल हो और तू पूरा बातों को तू संभाल। This is the only thing that we can do and that we should do. और केवल हम यही बात को कर सकते हैं और ये हमें करना है। And with these words, I want to say thank you for giving me this time, and let the word that has come out bless everybody, strengthen everybody, and comfort and encourage everybody. इतने इस संदेश के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस समय मुझे दिया है और इस वचन आपको शांति दे, दिलासा दे